discuss what is the behaviorism school of thought and who is developing. Behaviorism is a highly influential academic school of psychology that dominated psychological theory between the two world wars. Classical behaviorism, prevalent in the first third of the 20th century, was concerned excessively with measurable and observable data and excluded ideas, emotion, and the consideration of inner mental experiences and activity in general. In behaviorism, the organism is seen as a responding to condition, stimuli set by outer environment and by inner biological process. The previously dominating school of thought, structuralism or functionalism or the psychoanalysis, you can see that they are describe psychology the science of consciousness, experience or mind. Although body activities were not excluded, they were considered significant in their relation to mental phenomena. Behaviorism school of thought जो कि J.B. वॉटसन ने उसको डेवलप किया था, he was focused on the relationship between the stimulus and response which is called SR formula, right? और वो फोकस कर रहा था कि ह्यूमन के बिहेवियर को मेजर किया जाए जो कि एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू यूज़ किया जाता है, राइट? स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट है, जैसा कि आपने हिस्ट्री एंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी 1 में पढ़ा है, वो इनका साइंटिफिक मेथड क्या था? इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन मीन वंस ओन सेल्फ परसेप्शन, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं, तो जो आप बताएंगे अपनी फीलिंग को जानते हुए, वो इंट्रोस्पेक्शन है, राइट? बट वॉटसन ने उसको अनसाइंटिफिकली बताया और ही कैन बी डिफाइन दी थ्रू measure the human behavior through stimulus and response. Watson was an American psychologist who established the psychological school of behaviorism. His ideology was revolutionary during the 19th century. Before, his contribution to psychology was primarily based on cognitive thought or relationship with other individuals. John Watson introduced the cause and effect relationship when introduced the stimuli. आज के लेक्चर में लेटर हम पढ़ेंगे कि क्या व्हाट इज स्टिमुलाई, व्हाट इज रिस्पांस, राइट? सो एक स्टिमुलस का और रिस्पांस ऐसा है जैसे एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है. Watson, the principal originator of behavioristic psychology, first claimed that human behavior consisted of specific stimuli that result in certain response. कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई की रिजल्ट की सूरत में सामने आता है जब इंसान रिस्पॉन्स देता है. जैसे हमें बुखार है, हमें कब पता चलता है हमें बुखार है? जब हमें हमारी बॉडी हीटेड फील हो रही होती है, राइट? तो ये सिम्टम हमें बता रहे हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ स्टिमुलाई जो हम पे अफेक्ट कर चुका है, ये कर रहा है. In 1915 served as the president of American Psychological Association APA. In 1925 published Behaviorism. In 1928 published Psychological Care of Infant and Mind and Child. In 1957 received the APA award for contribution to psychology. This is the very brief biography of J.B. Watson. Okay. In early formation of behaviorism was a reaction by U.S. psychologist J.B. Watson, as you know. He was against to introspection psychologists like structuralism, functionalism, William Wundt and William James. In Behaviorism 1924, Watson wrote that behaviorism claimed that consciousness is neither a definable nor a usable concept. It is merely another word for the soul or more ancient time. The old psychology is dominating relate the psychology with religious aspect, like the psychology का मतलब psychologos, the knowledge of soul, राइट? रूह का इल्म था, फिर वो उसको स्पिरिचुअलिज्म और उससे रिलेट कर रहे थे. बट 18th सेंचुरी के बाद साइकोलॉजी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन 1879 साइकोलॉजी स्टैब्लिश एज इंडिपेंडेंट साइंस और फर्स्ट लैब बनी लिप्जिग जर्मनी में. तो उसमें क्या है कि फिर वो उसको साइंटिफिकली मेजर करना स्टार्ट हो गया. Watson believed that behavior is an attempt to make a fresh, clean start in psychology, breaking both with current theories and with traditional concept of terminology. Right? कि ये जैसा साइकोएनालिसिस एक बिल्कुल न्यू
टर्न लिया साइकोलॉजी की फील्ड में जो कि फ्राइड का कंट्रीब्यूशन था, इसी तरह बिहेवियरिज्म भी एक फ्रेश और क्लियर स्टार्ट था साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूट का एज ए इंडिपेंडेंट साइंस को एस्टेब्लिश होने में. In this way, psychology was to become a purely objective experimental branch of natural science. Right? आपको पता है साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स और whether it would be lab or in natural setting, एक्सपेरिमेंट पे बेस करती है. तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जैसे एक सब्जेक्ट भी है और वो ब्रांच की सूरत में सामने है. Watson objectivist learning was by development in the history of thought, and his work typified strong trend that has been emerging in biology and the psychological since last 19th century. Right? Okay. He give the hypothesis experimentally how we can prove that the human behavior, we can measure the human behavior through response. Right? Okay. First we discuss what is stimulus. Stimulus is an event or condition that initiate a response. Stimulus क्या है? या वो एक इवेंट है या वो कभी कंडीशन है जो कि रिस्पांस को इनिशिएट करता है. रिस्पांस इज अ रिएक्शन टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई. पहले स्टिमुलस होगा तो उसका रिस्पांस आएगा. स्टिमुलस इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट. रिस्पांस इज ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू स्टिमुलाई. स्टिमुलस वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप, इंटेंसिटी, लोकेशन एंड ड्यूरेशन. राइट? स्टिमुलस हमेशा एक जैसा नहीं होता. आगे आप उसकी टाइप भी पढ़ेंगे. देयर आर टू टाइप ऑफ स्टिमुलस, इंटरनल और एक्सटर्नल. सो इसी तरह एक स्टिमुलस की इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है तो उसका रिस्पांस भी इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा. लोकेशन हुआ है तो रिस्पांस भी डिपेंड करेगा उसका लोकेशन. और इसी तरह ड्यूरेशन. देन एक्स कार हॉर्न एंड कमिंग असाइड हेयरिंग कार हॉर्न. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलाई एंड द रिस्पांस. ए रैबिट गेट्स स्केयर्ड सो इट्स रन अवे. You are feeling cold, so you put on a jacket. A dog is hot, so lies in the shade. It starts raining, so you take out an umbrella. So it's mean it starts raining, so you take out an umbrella. Right? First stimulus is present, then you show your response. So हम बहुत दफ़ा हम जनरल बिहेवियर की बात करते हैं. हम बहुत से लोगों को बिहेवियर को हम दूसरे एस्पेक्ट में मेजर करते हैं. बिहेवियर हमारा रिस्पॉन्स है. राइट? Okay, now we talk about the internal or external response. When we talk about the internal response, that will be related to our biological process, our food, hunger, thirst, right? And when we talk about the external, it will relate our heat, cold, weather, relate to our weather, right? So, if we talk about the period of 1912 to 30, maybe called out the period of classical behaviorism. Watson was then the dominant figure, but many others were soon at work giving their own systematic twist to the development of program. Classical behaviorism was dedicated to proving that phenomena formerly believed to require introspective study such as thinking, imagery, emotion or feeling. Right? नो डाउट. अब इंट्रोस्पेक्शन हेल्प आउट है जब हम एक क्लिनिकल सेटिंग में हैं और एक क्लाइंट थेरेपिस्ट को अपनी फीलिंग बता रहा है तो ऑब्वियसली उसमें इंट्रोस्पेक्टिव जो स्टडी है, जो मेथड है, वो केस स्टडी में यूज होता है. राइट? व्हेन यू डिफाइन योर थिंकिंग. राइट? थिंकिंग और इमोशन या फीलिंग, इमोशन को हम मेजर कर सकते हैं थ्रू अवर फिजियोलॉजिकल चेंजेस. राइट? जैसे हमारी सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में चेंज होती है. जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी चेंज होते हैं. राइट? बट यू कैन नॉट मेजर द फीलिंग और द थिंकिंग और द इमेजरी. यू कैन एक्सप्लेन थ्रू द इंट्रोस्पेक्टिव स्टडी. राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको वर्ड्स बोल के बताऊं, एक इंसान कहता है मैं सैड हूं. राइट? दूसरा इंसान बता रहा है मैं परेशान हूं. इट्स साउंड लाइट, परेशान है, टेंस हूं, ठीक है. इंसान कहे मैं बहुत मुश्किल में हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत अजियत में हूं, मैं बहुत ज्यादा. सो द इंटेंसिटीज आर डिफरेंट, द चॉइस ऑफ द वर्ड्स आर डिफरेंट, जो कि उसकी अपनी फीलिंग को बता रहा है. राइट? इसी तरह आप क्या सोच रहे हैं, इमेजरी और इमोशन और फीलिंग, वो एक इंट्रोस्पेक्टिव स्टडी के थ्रू आती है. क्लासिकल बिहेवियरिज्म वर फर्दर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिक्ट determinism based on the belief that every response is elicited by a specific stimuli. Behaviorism में
जो फर्दर कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत जो फिजियोलॉजिस्ट थे इवन पेफ्लॉफ और B.F. स्किनर ने लर्निंग पे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने इस पे क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पेफ्लॉफ एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय B.F. स्किनर, जो कि न्यू बिहेवियरिज्म में नेक्स्ट वीक जो हम इंशाल्लाह उसको स्टडी करेंगे डिटेल में. बिहेवियरिज्म बिकम द डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट ड्यूरिंग द 1950s based upon the work of thinkers such as John Watson, Evan Pavlov and B.F. Skinner. Behaviorism holds that all behavior can be explained by environmental causes rather than by internal forces. Behaviorism is focused on observable behavior. When they talk about वो behaviorists जो हैं वो environmental causes को ज़्यादा important देते हैं as compared to, जैसे फ्राइड हमने पढ़ा, आपको मैंने पढ़ा, उसमें फ्राइड किस पे फोकस कर रहा है? अनकॉन्शियस थॉट्स, राइट. अकॉर्डिंग टू फ्राइड हम और न्यू फ्राइडियन में आपने जैसे पढ़ा एडलर इंफीरियरिटी है हमारी, कार्ल युंग कलेक्टिव अनकॉन्शियस है और जिसे हमारे आर्कीटाइप्स हैं, एंड देन कैरन हॉर्नी डिस्क्राइब डिफरेंट 10 न्यूरोटिक नीड्स और उसने बेसिक कॉन्सेप्ट जो एंजाइटी मैंने आपको बताया था उसके, और फ्राइड का कॉन्सेप्ट क्या है? अनकॉन्शियस. सो अकॉर्डिंग टू फ्राइड फर्स्ट 5 ईयर में पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है. एडलर भी इस पे इसको एग्री करता है. बट बिहेवियरिज्म दे सेड दैट वी कैन नॉट मेजर द अनकॉन्शियस थॉट और रिप्रेस मटेरियल एज कंपेयर टू. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो कि नजर आ रहे हैं, अब उसने कहा कि साइंटिफिक स्टडी है जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू होती है, तो वो स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स है वो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है जो कि नजर आ रहा है, मगर एक फीलिंग जो है वो नजर नहीं आ रही. सो क्रिटिसिज्म या इनकी जो कंट्रोडिक्शन और इख्तलाफात थे वो इन्हीं पॉइंट्स पे थे, राइट. वी डिस्कस द हिस्ट्री, सो वी रिस्पेक्ट ऑल द थियरिस्ट थ्योरी, राइट. When we talk about the Pavlov and Skinner, they work on human learning, how we can learn. Like then they also talk about the social learning. हम कैसे सीखते हैं? दूसरों को देख के, observable phenomena. बच्चे कैसे सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से. हम बहुत सारे एटीट्यूड हमारे कैसे फॉर्मुलेट होते हैं? दूसरे को देख के, इन्फ्लुएंस होके. हम बहुत से गुड या बैड हैबिट्स या जेस्चर्स कैसे सीखते हैं? दूसरों से देख के. एक छोटे बच्चे को नहीं पता कि एक काम जो वो देख रहा है लाइक अ सुपरमैन, उसने कहीं उठता है और उसने उसको भी प्रैक्टिस कर ली, जो एक बिहेवियर देखा उसको आइडिया नहीं है कि ये चीज उस तरह वर्क रियलिटी में करेगी या नहीं करेगी, राइट. सो वो सोशल लर्निंग थ्योरी में बेंडोरा की थ्योरी भी हम नेक्स्ट वीक जब डिस्कस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारी लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह सिर्फ हमारी लर्निंग होती है, ठीक है. और बाद में ऑब्वियसली बिहेवियर थेरेपी भी सामने आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बिहेवियर थेरेपी की और बहुत गुड आउटकम उसके सामने आते हैं. इफ यू टॉक अबाउट दी क्लासिकल बिहेवियरिज्म, इसको क्लासिकल बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, न्यू बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, जो हमने नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डिटेल से करना है. इवॉल्व फ्रॉम 1930 थ्रू द लेट 1940s. इन दिस अप्रोच psychologists attempt to translate the general methodology prescribed by Watson into detailed experimentally based theory of adaptive behavior, right. Most of the time we use different kind of adaptive behavior which is maybe came from our environment, internal or external environment, right. So the era was dominated by learning theorists Clark, H. Hall, B.F. Skinner. Skinner thought was a direct descendant of Watson's intellectual heritage and became dominant in the field of after the mid-1950s. Other important behaviorists include Hull, Influence, Spencer, Miller, who claim that neurosciences is the most productive avenue in psychological research. Cognitive theorists Edward C. Tolman and Edmund Guthrie. They also talk about Tolman and others brought about a liberation of strict behaviorist doctrine. The poster towards objectivism remained fundamentally the same even while admitting the existence of intervening mental variable, accepting variable report, and branches into areas such as perception.
फर्स्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने आपको कॉग्निटिव प्रोसेसेस बताए थे, राइट? अब वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं वो आई ऑल्सो टोल्ड यू दे आर द हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ द ब्रेन, राइट? जब हम एलिमेंट की बात करते हैं और जैसे साइकोलॉजी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, सो वो उसको कॉग्निटिव प्रोसेस की बेस पे है और उसमें परसेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. A natural outgrowth of behaviorist theory was behavior, right? They focus on behavior. आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, राइट? आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं किसी के बिहेवियर में? कोई परेशान है कैसे पता चलता है? कोई खुश है, कुछ अनयूजुअल हुआ है, ऑब्वियसली बिहेवियर में चेंज है. कोई बीमार है, राइट? तो वो कैसे चेंज वो पता चलता है आपको? उसकी बिहेवियर से, उसके रिस्पॉन्स से, राइट? या कोई बात में आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, बोलने में इसकी जो है वो फीलिंग. Natural outgrowth of behavior theory was behavior, which rose to prominence after World War II and focus on modifying observable behavior, right? और वो modify भी करता है observable behavior को, rather than the thought and feeling of the patient in psychoanalysis. जब ये opposite है, obviously they are both आप कह लें कि rival हैं ये दोनों. In this approach, emotional problems are thought to result from faulty acquired behavior pattern or the failure to learn effective response. बहुत important बात है, emotional problems are thoughts. जो problem है हमारी emotional वो thoughts हैं, कैसे आती हैं? To result from faulty acquired behavior pattern, गलत तरीके से बिहेवियर पैटर्न जो हमने सीखे हुए और द फेलियर टू लर्न इफेक्टिव रिस्पॉन्स. एक तो हमने जो पैटर्न सीखे हैं वो गलत नहीं है और जो हमने उसके रिस्पॉन्स दिए वो और भी ज्यादा रॉन्ग है. सो दैट्स वाई जो इमोशनल प्रॉब्लम और डिसऑर्डर्स की वजह है वो ये है, राइट? जैसे फ्राइड है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड मैंने आपको बताया अनकॉन्शियस में जो रिप्रेस मटीरियल है वो एंजाइटी प्रोवोक करता है और उससे बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं. ऐसा है. देन वी टॉक अबाउट द न्यू बिहेवियरिज्म. Then we talk about the New Freudian. New Freudian में क्या था? They talk about the different according to Adler inferiority होती है, according to Jung collective unconscious हमारा personal unconscious है और ego है हमारी, और according to कैरन हॉर्नी हमारी जो बेसिक एंजाइटी है और फिर हमारी जो 10 न्यूरोटिक नीड्स हैं वो जब अनफुलफिल रह जाती हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. सो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट दे थॉट दैट कि हमारी जो फॉल्ट प्रॉब्लम है वो हमारी एक्वायर्ड बिहेवियर पैटर्न है और द इम्पोर्टेंट टू फेलियर टू लर्न इफेक्टिव रिस्पॉन्स. सिर्फ राइट बिहेवियर नहीं, स्टिमुलस नहीं होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स भी उतना ही क्लियर और सक्सेसफुल होना चाहिए. The aim of behavior therapy, also known as behavior modification, is therefore to change behavior pattern. So जो behavior therapy है basically इसका purpose क्या होता है कि जो faulty acquired behavior pattern है उनको correct behavior pattern को change करके और वो जो failure है एक effective response में जो problem आ रहा है, जो reluctant है, उसको जो है वो change किया जाए. ठीक है. So these are all the this is today lecture is behaviorism school of thought. और behaviorism school of thought में आज आपने क्या learn किया है? Basically J.B. Watson, he was an American psychologist. He gave the formula of stimulus response, right? And then we talk about the two type of stimulus and response, internal or external. And then we also talk about how it's work. They are against towards the introspection study method. They introduce the experimental study method, right? Then we talk about the Watson contribution in the psychology, that he dedicate all the is a theory, and then it also progressive through classical behaviorism. Behaviorism यहाँ stop नहीं हुआ, जैसे हमने साइकोएनालिसिस और फिर फ्राइडियन न्यू फ्राइडियन पढ़ा था. अब फिर हम जैसे आज हमने बिहेवियरिज्म किया, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपका लेक्चर न्यू बिहेवियरिज्म पे होगा कि जो आगे वॉटसन की बिहेवियरिज्म स्कूल थॉट में कितना कंट्रीब्यूशन प्ले किया है. एवान पेफ्लॉफ और B.F. स्किनर ने मोस्टली ये दो हाईलाइटेड है. अदरवाइज जैसे आपने देखा हल्का है, टॉलमैन है, थॉरनडाइक है, गुथरी है, इन सब की भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें शामिल है.
सो आज के लेक्चर में आपने ये लर्न किया है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, व्हेन वी टॉक अबाउट द measure of the human behavior through the scientific way, we can use stimulus and response formula. Okay class, thank you so much.